السلام علیکم ناظرین کشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل زی پور شپینس مز آز دوپہرن تمہ سات فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپزم یل فورسز اہلکاروں طرف علاقہ گیر کرنا آو ون زی فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکاروں طرف اخ مصدق اطلاع ملنس پہ زی پور شپیاں علاقہ گیر کرنا آمت یتھ دوران علاقس مز موجود ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولین ہند تبادلہ جاری اس مزید تفصیلات زی پور شپین پہ ارشاد احمد پیش کران۔ اس وقت جو ہوں کھڑا ہوں جہاں پہ یہ انکاؤنٹر بھی چل رہا ہے زی پورہ گاؤں میں اس وقت کھڑا ہوں، آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ جو ایریا ہے یہی ایریا ہے جہاں پہ اس وقت جو ہے گولی باری کا سلسلہ وقفے سے جو ہے جاری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں فی الحال اس ایریا کو جو ہے پولیس اور سیکورٹی فورس نے سیل کیا گیا ہے تاکہ جو اندر بیٹھے ملٹنٹ وہ بھاگ نہ جائے۔ کل ملا کر بات یہ تو جو ہے دونوں طرف سے جو ہے فائرنگ ابھی چل رہی ہے، ابھی یہ کہنا باقی ہوگا کہ کب تک جو ہے یہ انکاؤنٹر جاری رہے گا۔ شاہد پولیس شوپیان۔ نئی دلی مز پتمو کیچو دو پہ کورونا وائرس کن معاملن مز اضافہ سپد تت سپز آز ایل جی تو وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال درمیان میٹنگ یتھ دوران موجودہ صورتحالس حوالہ کتھن دل دن آو یل زن امہ پتہ پریس کانفرنس اون سانز کرنا آو یتھ دوران اروند کیجریوال وون زِ صلاح مشور کرنے پتہ یہ فیصلہ نن آمت زِ دلی مز یہ اکہ ہفتہ لاک ڈاؤن عمل مز انہ یُتھ زن کورونا وائرسس پہ روٹ لاگنس ست لوکن ہز حفاظت تہ یقینی بناونہ یی۔ آج صبح 11 بجے میری اور ایل جی صاحب کی میٹنگ ہوئی اور ان سارے پہلوؤں کے اوپر، ساری پرستھتی کے اوپر کافی وستار سے بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت کے بعد ہمیں یہ لگا کہ دلی کا ہیلتھ سسٹم بڑی ماترا میں اور ادھک پیشنٹس اب لینے میں اسمرتھ ہے۔ اگر ہم نے ابھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی تراسدی ہو جائے۔ ہم کسی بھی حالت میں دلی کو اس پرستھتی میں نہیں لے جانا چاہتے جہاں کوریڈور کے اندر پیشنٹس پڑے ہیں، سڑکوں پہ لوگ دم توڑ رہے ہیں۔ آج سبھی پرستھتیوں کا جائزہ لینے کے بعد آپ کی سرکار کو یہ لگتا ہے کہ دلی میں کچھ دن کے لیے لاک ڈاؤن لگانا ضروری ہے، تو آج رات کو 10 بجے سے اگلے سوموار کو صبح 5 بجے تک 6 دن کے لیے دلی میں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے۔ اس دوران ظاہر ہے کہ جو ایسنشل سروسز ہیں وہ جاری رہیں گی، کھانے پینے کی، میڈیکل ویوستھاؤں کی وہ جاری رہیں گی۔ یہ شادیوں کا سیزن ہے، لوگوں کے بڑے مشکل سے رشتے بنتے ہیں، ہم ان کے رشتے توڑنا نہیں چاہتے، تو لوگوں کی شادیاں سمپن ہوں لیکن کیول 50 لوگوں کے گیدرنگ کے ساتھ سمپن ہوں، اس کے لیے الگ سے پاس دیے۔ دونوں نے نرنے تب لیا ہے جب ہمارے پاس کوئی اپائے نہیں بچا تھا۔ ہمارے لیے یہ نرنے لینا آسان نہیں تھا کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کے دوران کس طرح سے لوگوں کے روزگار ختم ہو جاتے ہیں، لوگوں کی کمائی ختم ہو جاتی ہے، اور خاص کر سب سے غریب طبقے کے لیے تو یہ بے حد مشکل ہوتا ہے۔ جو دہاڑی کر کے روز کماتے ہیں ان کے لیے تو بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ پچھلی بار جب دیش میں لاک ڈاؤن لگا تھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح بڑی سنکھیا میں پرواسی مزدور اپنے گاؤں جانے لگے تھے۔ ان سے میں خاص طور سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا سا لاک ڈاؤن ہے 6 دن کا، دلی چھوڑ کے مت جائیے گا۔ آپ کے آنے جانے میں اتنا سمے خراب ہو جائے گا، اتنا پیسہ خراب ہو جائے گا، اتنی ارجا خراب ہوتی ہے۔ دلی میں رہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹا لاک ڈاؤن ہے اور چھوٹا ہی رہے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ شاید بڑھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ دلی میں رہیے، یقین مانیے ہم پوری ایمانداری کے ساتھ سب مل کے لڑیں گے تو جلدی اس مصیبت سے چھٹکارا پائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سرکار آپ کا پورا خیال رکھے گی۔ میں ہوں نا، مجھ پہ بھروسہ رکھیے۔ سری نگر مز کورونا وائرس کن معاملن مز پتمو کیچو دو پہ اضافہ سپد تت آز سری نگر میونسپل کارپوریشن کس میئر جنید اعظم متو سندس صدارتس مز میٹنگ ہند سانز کرنا آمت یت مز انتظامیہ کیو افسرو شرکت کر۔ ات موقع پہ موجودہ صورتحالس حوالہ کتھن دل دن آو تت کمیٹی تہ تشکیل دن آمت یُتھ زن ایس او پیز عملاونس مز آسانی سپدِ۔ یل زن میٹنگ پتہ جنید اعظم متون وون زِ انتظامیہ طرف پریت کھانا سہ قدم تلنہ یم ست عام لوکن ہز حفاظت یقینی بناونہ یی، تاہم پز لوکن انتظامیہ اتواس کرن۔ کل کی جو گائیڈ لائن آئی ہے دیٹ از انڈسکرمنیٹ۔ 100 لوگ سے زیادہ کسی بھی وینیو پہ جو ان کی اسمبلی ہے وہ
इन वायलेशन ऑफ नॉर्म्स और अनलॉफुल डिक्री की गई है। ये ऑर्डर्स कल इशू हुए हैं, थ्रू मैजिस्ट्रेट्स इशू हुए हैं, तो दिस अप्लाइज टू टूरिज्म ओपन प्लेसेस टू, लेकिन क्लोज्ड प्लेसेस का लेस देन 50 किया गया और कहीं कहीं पे मसाजिद में 500-600 भी देख रहे हैं। तो उस पर थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है, इसलिए जो इमाम साहिबान हैं, जो क्लर्जी है फ्रॉम अक्रॉस रिलीजन्स, वी आर गोइंग टू sit with them and ask them how they can assist us, help us, and how we can work together. Trade and Tourism Association से भी कि markets की alternating कैसे की जाए, तो ये सारी चीज़ों पे हम थोड़ा बैठ के गौर फिक्र करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि what is the best course of action to take both scientifically, administratively, and what is a sustainable course of action, because economics is not an optional this thing. The livelihood of people has to be taken into account. That is a compulsion that cannot be wished away. इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि चैलेंजेस क्या हैं, रियलिटीज़ क्या हैं, कंपल्शंस क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में ऑन अ रियल टाइम बेसिस वी आर गोइंग टू इवॉल्व अ स्ट्रैटेजी। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत ये अकि तरफ कोरोना मामलों में इजाफा सपदमुत तत दोयमो तरफ लूकन हज हिफाजत यकीनी बनाने बापत संजीद कदम तुलना आमत। ये जन आज जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर SSP श्रीनगर तो दोयमो इंतजामी के अफसरों तरफ शहर श्रीनगर के मसरूफ तरीन इलाकन हुंद दौर कोर यथ दौरान तिमो जमीनी सूरत हालुक जायजे होद। अत मौके पे तिमो लूकन अपील कर तिम गन SOPs पे अमल करें, तत तिमो मुतलिक अफसरन हिदायत दितमित जे खिलाफ वर्जी करने वाले लूकन खिलाफ गज सख्त कार्रवाई अमन मज अन्न यीन युत जन लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावनस मज आसानी सपदे। आप जो बात कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं? आपके पास सर्वे कितना है? क्या आपके पास पूरी आबादी का सर्वे है? क्या आपके पास 70% पॉपुलेशन का राय आपके पास है? नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक कुछ आवाज़ों की बात कर रहे हैं, ऐसी कुछ आवाज़ें हैं जिनका उठना ज़रूरी है। हम उनकी जो राय है उसको भी मद्देनज़र रखेंगे और इस पर कुछ भी फैसला लेने से पहले सभी स्टेक होल्डर्स को सरकार ऑन बोर्ड लेती है, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। और हमारे यहाँ जो SEC है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके फैसले वक्तन फ़क्तन आते हैं और उसको ग्राउंड पर उतारा जाता है, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही ये SOP है जहाँ एयरपोर्ट से बिना टेस्टिंग के किसी को नहीं छोड़ा जाता। और आज लोअर मुंडा में देखिए, आप लखनपुर में देखिए, टेस्टिंग मैंडेटरी है, तो इसलिए फिल्टर करके ही छोड़ा जाता है। आप 2-4 ममालिक को देख लीजिए जिन्होंने वैक्सीनेशन मेजर स्केल पर लिए है और जिन्होंने वैक्सीनेशन किया है, आज उनकी पॉपुलेशन पूरी सेफ है। लिहाजा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चल रही है। मेरी गुजारिश है सभी से कि आज भी इस वक्त भी हम एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं यहाँ SMC में, तो यहाँ पर जो SMC हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी वैक्सीनेशन चल रही है। तो सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में मास्क के अलावा वैक्सीन है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हज के बारे में आपने मुझे सवाल पूछा है, बहुत अहम बात यह है कि ये डायरेक्शंस, गाइडलाइंस जो हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हैं कि जो लोग भी ख्वाहिशमंद हैं हज करने के, उनको वैक्सीनेशन कराना होगा। और दोनों जो होली मास्क है वहाँ से भी ये ऐलान हुआ है कि कहीं किसी को शक न रहे कि रमज़ान या रोज़े की वजह से रोज़े में वैक्सीन कराने की इजाज़त है और वैक्सीन से रोज़ा इनवैलिडेट नहीं होता है। ये बात हर किसी को क्लैरिटी से मालूम होनी। ये डॉक्टर नवीद नज़ीरन मौजूद सूरत हाल हवाले कत करान वोनमुत यदवैन लूको तरफ एहतियात वर्तन यी तेल सह दो दूर ये दोयमन रियासतन हिंद पे वादी हिंदन हस्पतालन मज ते मरीजन हुंद दबाव बढ़े। हमारे केसेस करीब कल 1500 से ज़ायद हो गए थे, जो हमारे पिछले साल के रिकॉर्ड को भी बीट कर गए पर डे डिटेक्शन में। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें एहतियाती तदाबीर जो भी है वो तो लोगों को, हर किसी को पता है। सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग या सैनिटाइज़र यूज़ करना है। तो यही एहतियाती तदाबीर अगर हम लें तो अभी भी मौका है, तो हम इसको नंबर ऑफ़ केसेस जो अलार्मिंग रेट पर बढ़ रहे हैं इसको हम रोक सकते हैं। और इस टाइम हम अगर देखें तो पिछले साल
से मुकाबले में इस साल ये वायरस थोड़े डिफरेंट तरीके में बिहेव कर रहा है। हमारे जो यंग जवान हैं उनको भी ये इन्वॉल्व कर रहा है सीवियर मॉडरेट निमोनिया में, तो इसलिए ये एक बर्डन पड़ सकता है हर अस्पताल में। और फिर अगर ऐसी ही रेट पे केसेस बढ़ते रहे तो हमारे अस्पतालों के बेड भी कम पड़ सकते हैं इस सिचुएशन में। ये लॉकडाउन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है इस सिचुएशन में। हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ ताकि जो गैदरिंग्स है उसको अवॉइड करें, लेकिन लॉकडाउन तो एक ब्रीदिंग पीरियड होता है, एक हमारी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए। जम्मू कश्मीर मज ये कोरोना वायरस कन बड़वन के मामलन पे रोट लागने बापत इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने तत वादी मज मौजूद सैलानियों तरफ वन आमुद ये इंतजामिया तरफ वादी इन वालन लूकन हिंद बापत टेस्टिंग तो दोयम सहूलियत आयतन थावन आम तत सयाहों तरफ मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित एहतियात वरतन। हम लोग पूना से हैं, सन टूरिज्म मेरी कंपनी का नाम है और हम लोग सन टूरिज्म के ग्रुप है जो वहां से घूमने आए। जब आप कश्मीर पहुंचे तो उसके बाद किस तरह का मूवमेंट रहा आपको एयरपोर्ट में, किस तरह की वहां पे प्रोसीजर रहा टेस्ट को लेकर? जी बहुत स्मूथ था, टेस्टिंग की अगर आप बात करेंगे बहुत स्मूथ प्रोसेस था। तो वहां पर उन्होंने एक फॉर्म भर के उसमें सब डिटेल्स लिया हमारा जम्मू में, और उसके बाद में उन्होंने तुरंत जो उनका टेस्टिंग था वो किट दिया, किट से उनका टेस्टिंग हुआ कंप्लीट, और मुश्किल से एक 10 से 12 मिनट का ये पूरा प्रोसीजर है। सो थैंक्स टू J&K गवर्नमेंट, दे आर रियली डूइंग गुड एंड इट वाज वेरी वेरी आई मीन एनर्जेटिक। हम लोग आपने देखा है मेरे पूरे जितना भी ग्रुप है इंक्लूडिंग मी, वी ऑल यूजिंग मास्क एवरीवेयर। हम लोग उसके बिना जा नहीं रहे। हमारे पास सभी के पास अपने सैनिटाइजर्स होते हैं, एवरीवन इज होल्डिंग द सैनिटाइजर। एक एक मिनट पे हम लोग कहीं भी हाथ लगाते किसी चीज को हम लोग तुरंत सैनिटाइज करते हैं। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू इफ यू आर फॉलोइंग दीज 2 guidelines, everything will be. And one more thing, like take steam in the night every day. Okay. That's all. You will be fine, perfectly fine. Oh, and of course आपको अपना सेहत का ख्याल खुद रखना होता है। वादी कशीर मज ये रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर से दफ्तर पे गाड़न हज दोयमे रजिस्ट्रेशन हवाल हुक्मनाम जारी कर आमुत। तत सपज आज मामलस हवाल हाई कोर्टस मज समात। यथ दौरान कोर्ट तरफ रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसरस 21 अप्रैल कोर्टस मज हाजिर सपदन बापत वन आमुत। आज केस की सुनवाई थी और ये डिवीजन बेंच में लगा था, तो कोर्ट में ड्यूरिंग ये पहला ही केस उठा तो कोर्ट ने डायरेक्शन दी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर को पर्सनली रहना है प्रेजेंट ऑन 21 अप्रैल। और केस के जो अगला डेट है केस की फाइनल सुनवाई का वो 21 अप्रैल। और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को बोला गया वो इंश्योर करे कि आरटीओ कश्मीर पर्सनली प्रेजेंट रहेगा ऑन 21 अप्रैल। कोर्ट ने पूछा एडवोकेट जनरल साहब को, कोर्ट ने पूछा कि आपके पास ये पावर्स कैसे हैं जिसके तहत आप ये करते हैं। तो एडवोकेट जनरल साहब कोर्ट जब सेटिस्फाई नहीं हुआ उन्होंने बोला कि आरटीओ को पर्सनली प्रेजेंट होना है ताकि वो कोर्ट को बोलेंगे ये कानून ये पावर्स उन्हें कहां से लाए। जब कोई केस बहुत गंभीर होता है, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, जब कंटेम्प्ट ऑफ लॉ हो जाता है किसी अथॉरिटी की तरफ से, तब कोर्ट पर्सनली ऑफिसर्स को बुलाता है। तो इस केस में इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात यह है कोर्ट ने आरटीओ कश्मीर को तलब किया कि वो पर्सनली मौजूद रहे नेक्स्ट डेट जो 21। हंदवरिस मज आज तालिब इल्मों तरफ कॉलेज इंतजामिया खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करान वन आमुद योदवे 12वीं जमात सद सालाना इम्तिहान पास करने पत तिम मुतलिका कॉलेजस मज दाखिल निन बापत पतमो कईयाह दौर पे ताहम कॉलेज इंतजामिया तरफ तालिब इल्मन दाखिल दिनस हवाल संजीदा कदम तुलना आमत यम किन तालिब इल्म परेशानियन मन हन आय। तालिब इल्मों तरफ इंसाफ फराहम करने मांग करना आमत। अल्लाह सर भी एडमिशन में हम यहाँ पे आए थे आज सर, यहाँ पे बड़े प्रिंसिपल सर यहाँ पे एडमिशन से 960 सीट्स रिजर्व है, केमिस्ट्री है। हमारा मुतल्ला है सर जो लड़के जो यूथ मेरिट में नहीं आते वो कहाँ जाएंगे। हमारा मुतल्ला सर LD गवर्नर साहब से यूनिवर्सिटी हुकाम से अल्लाह हुकाम से मुतल्ला है कि इस कॉलेज के लिए सीट्स रिजर्व रखें और भी ताकि जो बच्चे जो मेरिट में नहीं है वो कम से कम तालीम हासिल कर सके। अदरवाइज अगर यूनिवर्सिटी हुकाम ऐसे या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ऐसे इस कॉलेज के लिए सीट नहीं रिजर्व रखे ताकि बच्चे यूथ कहीं ना कहीं किसी गलत। क्योंकि ओपन मेरिट का जो लिस्ट है वो तैयार हो गया, वो हमने पब्लिक वो नोटिफाई भी किया है। स्टूडेंट्स उसमें जो भी सिलेक्ट हो गए हैं वो फीस भर रहे हैं इस वक्त, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक रिजर्वड का वो आज शाम तक हम रिजर्वड कैटेगरीज का जो 30% का कोटा है वो आज शाम तक हम नोटिफाई करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इन पूरे सब स्टूडेंट्स को 960 स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट,
तो उनको हम एक स्टिपुलेटेड टाइम 2 या 3 दिन दे देंगे टू कंप्लीट देयर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। जो ही वो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगे, हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स ने नहीं एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरे किए हैं, दैट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसका वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। अब वेटिंग लिस्ट जितनी भी वैकेंसीज होंगे उनको अगेन हम उनको फिलअप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब इसके बाद हम एसेस करेंगे कि कुल स्टूडेंट्स कितने रहे हैं जिनका एडमिशन यहाँ नहीं हो पा रहा। यपर पटनस मज आज तालिब इल्मों तरफ एहजाज करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल तालिब इल्म इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहजाज में शामिल तालिब इल्मों तरफ वन आमुत युदवे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटनस मज दाखिल निनस हवाले तम पत्मो कईयाव दो पे इंतजार ताहम कॉलेज इंतजामिया तरफ कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तम आवलनस मज हन आय। तालिब इल्मों तरफ इंसाफ फराहम करने मांग करना आमुत। प्रॉपर पढ़ने पढ़ाई ताल्लुक थवान सोन अपील वनस कि पटन कॉलेज कुन हेकान एडमिशन करने ग मगर तत प्रिंसिपल करान यह अलाउ कहें तो अम ओतर डेट 15 तुम पे गए SDM सबस नश तो अम तुम करो अलाउ पे वो तम मेडिकलस तो आर्ट्स मुतलिक मेडिकलस वन तक दिम 50 सीट आर्ट्स हेक 40 दिथ मगर वनस ना आर्ट्स पृछान तत कहें तौर क्या हेको अत बारस मज कर योर वन कर कॉलेज तो बंद योर वन ये ग कोविड बढ़ियामुत दो खो दो वनस क्या हेको कर। जी हम पटन लोकेलिटी से ही बिलोंग करते हैं और हमारी डिमांड ये है कि हमें GDC पटन में एडमिशन मिलना चाहिए और वैसे भी हम फॉर फ्लंग एरियाज में तो जा नहीं सकते। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आप क्रूर कॉलेज में जाओ, हमें 3 गाड़ियां चेंज करनी पड़ती है। इज दिस जस्टिस? इट्स नॉट फेयर विद अस, वी कांट डू दैट बिकॉज ऑलरेडी हमारा बहुत सारा टाइम सफर हो चुका है, हमने बहुत ज्यादा सफर किया है ऑलरेडी से। यहाँ से कोविड की 2nd वेव है, हम कहाँ जाए? और वैसे भी हम पटन कॉलेज में जाते हैं, वहां पर हमें कोई और ही सब्जेक्ट्स थोप दिए जाते हैं। वी आर नॉट मेंट फॉर दैट। हम आर्ट्स के हैं तो हमें आर्ट्स में ही फ्यूचर बनाना है, हम नहीं कर सकते ना BCom BSc, मतलब हम नहीं उसके स्टूडेंट है। तो हम ये चाहते हैं हमारे साथ जस्टिस करे, वो बात करे हायर अथॉरिटी से, वैकेंसीज बढ़ाए और अपने कॉलेज में हमें एडमिशन दे। पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत, यथ दौरान इंतजामिया मांग करना आई एसोसिएशनस सत मीटिंग हुंद सांस करने युन युत जन नरकनामन हवाले हतमी फैसले निन यी ताम लुकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। सबसे पहले ये जो गवर्नमेंट ने 125 रुपये रेट निकाला, ये कंज्यूमर के लिए है। जो कंज्यूमर है, जो मुर्गा लेने वाले आप और मैं आम इंसान, और ये फार्मर को क्या मिलता है 110। हम फार्मर की बात यहाँ कर रहे हैं, वी आर द मैन्युफैक्चरर्स। 110 क्योंकि 10-15 रुपया तो वो बेचारे जो डीलर्स है, रिटेलर्स है, उनका भी खर्चा है, उनका भी पेट है, मॉडल्टीज है, इसमें बहुत कुछ है। तो यानी कि हम फार्मर की 110, अब हम ये 110 ही जब लेते हैं फार्मर का रेट, ये हमने साबित किया इससे। ये हमारा चूजे का रेट है आज का, ये चूजे का रेट है, ये है, ये आप साबित कर सकते हो। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री से आप ये मिलकर इनसे पूछो क्या इनका ये गलत है या सही है। अगर ये गलत है हम ठीक करेंगे, अगर गवर्नमेंट का रेट इससे गलत है वो ठीक करे, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं। आवाम भी फ्री हो जाएगी, हम भी फ्री हो जाएंगे। हमारी ये चाहते हैं वो जल्दी से कल परसों एक मीटिंग बुलाए, हम भी आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री भी आएगा, सब कुछ आएंगे, ये इसका फैसला करेगा। जो जेन्युइन रेट, अगर हमने 10% लगाया है इंटरेस्ट, मतलब अपना प्रॉफिट, हमें खाली 8 ही दे दो ईद के लिए, ताकि ये मसला हल हो। ये हमारी रिक्वेस्ट है। जनूबी हंदिस त्राल कस्बस मज लूको तरफ द्रजस हवाले शिकायत बावन आज इंतजामिया तरफ माह रमजान नजर तल थवित चेकिंग अमल मज अन्ना आमच, यथ दौरान दुकानदारन नरकनाम चेक करना आई। चेकिंग दौरान ये खिलाफ वर्जी करने वाले कईयान दुकानदारन नश जुर्मान वसूल करना आव, तत दुकानदारन तंबेह करना आमुत तिम गसन सरकार नरकनामन पे अमल करें, युत जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। हम मार्केट भी चेकिंग कर रहे हैं कि ताकि कोई ब्लैक मार्केटिंग मत हो रही है, क्योंकि इस समय रोजे भी चल रहे हैं। जो माल है जो साफ है या सही है या रेट सही जेन्युइन है, मगर उसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंस है वो बहुत अहम है और मास्क लगाना पूरा इस समय ज़रूरी है, ताकि हम इस बीमारी को हम कंट्रोल करेंगे। मैं लोगों से एक बार और फिर अपील करता हूं कि आप मास्क पहनिए, मास्क के बगैर आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आप अपने परिवार
के दुश्मन बन रहे हैं कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, जैसे आप गर्म में आते हो, मास्क के बगैर आते हो सके आपको बीमारी लगी होगी है, तो आपके बच्चे, बुजुर्ग, माँ बाप, उनका ख्याल रख के आप वो मद्देनजर रख के आप मास्क हपरी शुमाली हंदिस सोपोर कस्बस मज लूको तरफ शिकायत बावन तब इंतजामिया तरफ आज मार्केट चेकिंग अमले मज अन्ना यथ दौरान कईयान दुकानदार नश जुर्मान वसूल करना आव ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव मुहिम रोज ब्रोह कुन जारी युत जन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेन। हमने आज एज पर द डायरेक्शन ऑफ एडीसी सोपोर साहब की हिदायत पे हमने आज मार्केट चेकिंग जो कि हमने पाया कि रेट लिस्ट आवेदन इन्होंने नहीं रखे थे, जो सब्जी बान है या ये है क्या बोलते हैं किराना वाले मुर्ग फौज, उन्होंने रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं किए थे। 2 लीगल सैंपल्स उठाए, एक डेट्स के तो और एक सूप जो है पाउडर उसका उठाया हमने। इस टाइम हमने ये नहीं पाया, हो सकता है हम नहीं बोलते कि नहीं नाजायज खोरी हो रही है, लेकिन इस टाइम हमने नहीं पाया। हमने अपने नंबर दिए हैं, जो भी कोई अगर कोई मुनाफाखोरी करता है तो हमें फोन करे, उसी टाइम तुमरहमा टंगमरगी हिंदो लूको तरफ शिकायत बावन वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत फिल्ट्रेशन प्लांट कायम करना आव, ताहम यह प्लांट काबिल इस्तेमाल बनाना आमुत यम किन इलाकस मज साफ चनाब वैसे मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने। जो ये यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया है पीएचई की तरफ से फिल्ट्रेशन प्लांट, जो उसकी मेन लाइन जो आने वाली थी, जो हेड था वो द्रंग से ऊपर जो है यशवक वहाँ से आने वाला था, जो प्लेन एरिया है वहाँ से आने था, लेकिन उन्होंने नीचे वहाँ उठाकर नाले से लाके पहाड़ों चढ़ा के यहाँ तक लाया, जिसको कमीशन किया उन्होंने। 2 दिन चला, 2 दिन के बाद पूरी पाइपें बह गई पानी में, क्योंकि ये नाले में से आ रही थी। जहाँ जिसकी सर्वे हुई थी उस पर नहीं किया काम, कहीं और से किया, खाली अफसरों को दिखाने के लिए कि ये कमीशन हो गया है, लेकिन असल में ये नहीं हुआ है। अब हम खरीफ गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं, इसकी कमेटी बनाएं ताकि इसकी जांच हो, ये पैसा कहां पे सर्फ हुआ है। हेड सिमो लगोमुत तो द्रंगी निश लगोमुत यमो हेड यम किन आब साफ आब आव न तत पटी कि बे ओस यमन खाली रंगमर्गी किन लोन 12 रेतन पके आब ये टंकी मज फिल्ट्रेशन प्लांट बराबर। सवलगाम कोलगाम के लूको तरफ शिकायत बावन वन आमद युद्ध मुकामी सड़कें हज खस्ताली हवाल कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। कोलगाम तो चवलगाम बाईपास छतबल गसन चहलन वारियन रोडन कनेक्ट कर बनो वरी ब्रो कदल तो कदलस नश थो कम से कम 5 मीटर ये जो जबरदस्त डेंजरस आए दिन एक्सीडेंट गसन तो अस जबरदस्त तंग वनकस डी सी साहब गुजारिश कर कर पे नजर सानी अत कर जल्द अज जल्द ठीक नत ब्रो कुन गया हादसा पे दरियाव मज तारन नत मशहूर यह बाईपास रुझा जबरदस्त कनेक्ट कामयाब रुझा। जिले बडगमिस मज ये गिंद द्रकन बापत इंडोर स्टेडियम तमीर करने हवाले काम जारी तत मुकामी लूको तरफ अमे हवाले खुशी हूं इजहार करान। इंतजामिया मांग करना आमद योदवे जिलस से तोलुक थवन वालों कईया खिलाड़ियों तरफ नेशनल तो इंटरनेशनल सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी हूं मुजाहिर करना आव, ताहम जिलस मज तुथ बुनियादी ढांचे तैयार करना आमुत युत जन नवन खिलाड़ियों ब्रोह पकनस मज मदद मिले। डिस्ट्रिक्ट बडगाम के बच्चे अभी नौकरी भी कर रहे हैं, एसआरओ पे भी लगे हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे ये बड़ी खुशी की बात है, अभी यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बन रहा है तो ऑटोमेटिकली काफ़ी कुछ मिल जाएगा बच्चों को, और जो सहूलियात उसमें इंडोर स्टेडियम में होती हैं वो सारे कुछ। नागम चौधरी के लूको तरफ शिकायत बावन वन आमद यदवे म्यूनसिपल कमेटी चौधरी तरफ इलाक लूक मुश्किल मज त्रावन आई तो यह मामला कई फिर हुकामन नोटिस मज तन आव, ताहम हुकामों तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी बस्ती मज रोजन वाले लूकन हुंद दो गुजारुन सेठो मुश्किल सपुद। मुकामी लूको तरफ हुकामन मांग करना आमद म्यूनसिपल कमेटी हंद जिम्मेदार गसन जवाबदेह बनाने yin युत जन आम लूकन मज पौध सपदमुत तशवीश दूर करने yin। हार्टिकल्चर लैंड यप बागात और मतलब सानी माजी बेन कोरी या जमींदारी करने जमींदार
ये हतन मन हून यप बना पकन पे फक दोम गंट काव आये यम सवान लुकन पत ये अप बना टोटल पकन रात आव बच रप पकान तंगनार तिमन बिचारन खिवन बच तिमन लिहाजा SDM साहब चाडोरा या तहसीलदार चाडोरा एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है म्यूनसिपैलिटी वालों से कि वो जो है फिलफोर ये जो है सड़क के करीब अगर वो डालते हैं उसको बंद करें, जहाँ पे उनको आइडेंटिफाइड स्पॉट अंदर की तरफ बताया गया है जहाँ डिच उन्होंने खोदा उसकी तरफ डालें। उसके अलावा उनको ये भी हिदायत दी गई है ताकि उन्होंने उसके एस्टिमेट्स भी कुछ बनाए थे, उसमें हमने उनको बोला है कि उसमें जो है उसकी कवरिंग करें ताकि जो है खुदा न खास्ता लोगों को कोई दिक्कत हो। आपको मैं बताना चाहूँगा ये साइट जो है ये बिल्कुल आबादी से बाहर है, इसके आसपास आबादी नहीं। आपकी बात सही है कि सड़क से चलने वाले लोगों को शायद दिक्कत होती होगी, उसमें हमने आपसे पहले ही उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि वहाँ पे वो एक तो उसको परमानेंटली वहाँ उसको जो है फेंसिंग कर दें ताकि जो भी कूड़ा करके वो अंदर रहे और बाहर के जो लोगों हैं उनको कोई चलने फिरने। तो नाजरीन कशर खबरनामा अंत तो रूज वुचान खुसूसी प्रोग्राम 5 का 5 में दी इजाजत खुदा सवाल।